Hello, this is your host Sunidhi, and I welcome you to very exciting another vlog of CGC Unfiltered. और आज का जो vlog है that today we are in collaboration with the CCPD department. We'll know about the CCPD department, what role does it play in the career planning of a student. And for that, we have the Deputy Director, Mr. Mohan Prasad. Sir, a very warm welcome. Thank you very much, ma'am. Thank you very much for inviting for this wonderful series of CGC Unfiltered. All right. So, sir, what role does CCPD plays in the career planning of a student at CGC Jhanjeri? All right. So, if I talk about CCPD, it has three pillars. So, they are primarily taking care of the training part of student and the placement part, and the third very important part is Alumni Connect. So, when I say about training plays an important role. Why in education system training is important? Training is important because there is a huge gap in academic and industry expectation. So our department basically filling that particular gap. We are working as a bridge, and that's why we are giving this training. Right. So, I was hearing one of the interviews of a very renowned soft skill trainer. So, वहाँ पे वो ये बात कर रहे थे कि अगर हम किसी foreign land में we ask any student कि how was your day? So he is very blunt and transparent. Hey, my day was very good. And when we ask an Indian how was your day, so he would like to hide behind his parent कि मेरा दिन ऐसा था वैसा था. So I think CCPD plays a very big role in that to आपकी personality निकाल के लाए. So उसके लिए कोई exercise, special exercise आप अगर class में करते हैं anything? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर 75% पॉपुलेशन आर फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड. तो जो एक्सपोजर है वो उस लेवल का नहीं है. दैट इज़ वाई ये जो ट्रेनिंग है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और किसी भी, जैसे आपने एक बात करी है, दिस इज़ अ शाइनेस, राइट, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. तो ये शाइनेस भी नहीं कहूँगा, मैं इसको रिस्पेक्ट कहूँगा कि ये रिस्पेक्ट है कि एकदम से आगे से बढ़कर आगे नहीं करते हैं. लेकिन हाँ, आजकल के टाइम पे अगर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो वहाँ पे बच्चों को ब्लंट तो नहीं बट कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपस में कॉन्वर्सेशन करना. द कॉन्वर्सेशन इज़ वन ऑफ द एक्सरसाइज विच गिव्स अ बूस्ट टू द कॉन्फिडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट. Exactly. So, for example, if you are taking a class, so you always make sure that it is a two-way. Yes, it is. Not even in training, but even in education system, wherever we are, we have to work on the complete pedagogy. It has to be, whereas कि 70% class, even more than that, 80% class should be interactive. ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चा ज़्यादा बोले और जो फैसिलिटेटर है वो कम बोले, और उनको इंश्योर करे कि ये पार्टिसिपेटिव जो है वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन में रहे. Right. And sir, usually at CGC Jhanjeri we keep on organizing placement drives. So what do you think कि placement drive में आप एक student में exactly क्या चीज़ inculcate करते हैं so that they get placed at very good organization, very good companies. So something around that. So placement जो है वो एक लास्ट पड़ाव है बच्चे के करियर में. उससे पहले, प्लेसमेंट तक पहुंचने से पहले बच्चों को हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं, उनको कंपनी स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं, उनकी रिगरस एक्सरसाइज कराते हैं, जहाँ पर चाहे वो इंटरव्यूज़ हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे उनका रिज्यूमे राइटिंग हो. दीज आर द काइंड ऑफ थिंग. तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये एक प्रैक्टिस बेस्ड पेडागॉजी को हम लोग फॉलो करते हैं. उसके बाद जब बच्चा कॉन्फिडेंट होता है तब वो प्लेसमेंट में पहुंचता है, और जो भी उसने एक्सरसाइज पहले करी हुई है उसका रिजल्ट हमें प्लेसमेंट में दिखता है. और ख़ासतौर से मैं बताने में बहुत प्राउड महसूस करता हूँ कि जो CGC जो ग्रुप है ये प्लेसमेंट के लिए ही जाना जाता है कि बच्चा एक हम्बल बैकग्राउंड, एक रूरल बैकग्राउंड होने के बाद भी यहाँ पर एक बच्चा 5, 6, 7, 8 ऑफर जो है वो लेके जाता है. And I think CCPD has a very big and pivotal role in that, because you like train in a particular manner so that then when they appear for a final interview they're able to crack it. मेरे ख्याल से सिर्फ CCPD का पिवटल रोल नहीं है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रोल है वो सभी लोगों का है कि एक जो एकेडमिक है वो भी अपना एक रोल प्ले कर रहा है. वो बच्चों को उन रेलेवेंट स्टडीज़ पे हैंड्स ऑन करा रहा है जो कि एक इंडस्ट्री को चाहिए. ठीक है. उसके बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है, जिस तरीके से सिर्फ वो क्लास नहीं, बियॉन्ड द क्लास एक्सपोजर, यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है. यहाँ पे हम देखते हैं इतने सारे क्लब्स हैं, बच्चा जो है वो दिन भर पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्सपोजर्स लेता है. और ऑफ कोर्स जो CCPD ट्रेनिंग है, तो ये एक तरीके का कंप्लीट एमलगमेशन है जिसमें उसको सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पे बच्चों का एक होलिस्टिक ग्रोथ हो रहा है. Development, to put in simple words. And sir,
obviously सारे डिपार्टमेंट्स का academics का बहुत रोल है, but when it comes to communication skills, I guess that is one of the skill which is most required in today's era and today's organization. So sir, what do you have any specific kind of exercises जिसमें आप, जैसे हमने बात की two-way communication की, but कुछ ऐसा extra आप students को inculcate करते हैं to develop the communication skills apart from the two-way communication, any exercise or anything? एनी एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो ट्रेनिंग है ये एक एक्सरसाइज बेस्ड ट्रेनिंग ही है। तो यहाँ पर हम उनको सिचुएशंस देते हैं, सिचुएशन बेस्ड हो गया, केस स्टडीज़ हो गए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रोल प्लेज हो गए। दीज आर काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो बच्चा हर क्लास में करता है। जब तक वो उस चीज़ को मॉक नहीं करे, जब तक वो उस चीज़ का एक प्रैक्टिस पहले से ना करे। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरव्यू में बैठना कैसे है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, रोल प्ले में हमने रोल प्ले दे दिया, एक बच्चे को इंटरव्यूअर बना दिया, एक बच्चे को इंटरव्यूई बना दिया, उसके बाद उनका आपस में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन का पहले पूरा फॉर्मेट दे दिया। तो इस तरीके का जो है ये एक्सरसाइजेज हैं, ये एक्सरसाइजेज हम उनको कराते हैं। जहाँ पे भी लगता है कि उनको करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, हम उनको करेक्ट करते हैं। और जब इस तरीके की एक्सरसाइज करता है तो बच्चा अपने आप ही प्लेसमेंट से पहले वो रेडी हो जाता है। यही एक्सरसाइज आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है टू आपके अंदर का शाइनेस जिसकी हम बात कर रहे थे वो निकालने के लिए। एंड सर, secondly, when we talk about soft skill and personality development, obviously we need a grooming also. So any hints that any tips or hints that you would like to give to the CGCJ that or to the students actually, कि कैसे खुद को groom करें, how to dress up, how to talk, the body language, anything you would like to say here, any tip for the students? पहली बात तो ये है कि हमारा जो ये पूरा कॉलेज है ये एक ऐसे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है। और साथ में यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि हाँ, हम डेफिनेटली जो हमारा एक यूनिफॉर्म सिस्टम है जो सिर्फ हम लोग मंडे और फ्राइडे को फॉलो करते हैं, उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक प्रोफेशनल अटायर में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। जहाँ पे आप जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि अगर कंपनी में अगर हम अपने आप को जाते हैं तो एक पावर ड्रेसिंग होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल को हम लोग जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं जहाँ पे उनको पता होना चाहिए कि अगर ब्लेज़र पहन रहे हैं तो कैसा ब्लेज़र होना चाहिए, ट्राउज़र का कलर कैसा होना चाहिए, टाई कैसा होना चाहिए, सॉक्स कैसे होने चाहिए, शूज़ कैसे होने चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ऑफ कोर्स आपने बॉडी लैंग्वेज की बात करी, तो बॉडी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, कैसे देखना है, कैसे स्माइल करना है, कैसे आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, आपको बैठना कैसे है, ये सारी चीज़ें जो है एक रेगुलर करिकुलम का पार्ट है। तो ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, मेरे ख्याल से अगर बच्चा आता है तो ये उसकी फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है, राइट। तो एक ट्रांजिशन होता है, जब बच्चा स्कूल से कॉलेज में आता है वो भी एक ट्रांजिशन होता है, या फिर एक बच्चा ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आता है तो वो भी ट्रांजिशन होता है। तो इन ट्रांजिशन में हम लोग इंश्योर करते हैं कि सिर्फ जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि बच्चों के अंदर प्रोफेशनलिज्म और एक जो प्रोफेशनल अटायर है उसको वो पता होना चाहिए। और ये चीज़ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे हम जितने भी हमारे खुद के भी हम लोग स्टाफ हैं या जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं या ट्रेनर्स हैं, हम खुद भी उस फॉर्मूल को फॉलो करते हैं ताकि बच्चा देखकर सीखे। And that's very important, and that's how psychology of any human works. All right. So, what about the online trends and technology? How CCPD matches with that? अब तो मैं ये बोलूँगा कि इट्स अ ग्लोबल ट्रेंड राइट नाउ, राइट। कोविड हैज़ द अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन विच वी हैव सीन बिकॉज ऑफ कोविड। तो उसने हमारे को कई सारी चैलेंजेस दिए तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को लेके आना, दिस कोविड हैज़ मेड अस ईजियर फॉर अस। तो इस पर आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं प्लेसमेंट की ट्रेंड्स में भी काफ़ी चेंज देख रहा हूँ। कोविड से पहले जो कंपनीज़ हुआ करती थी वो 100% कंपनीज़ फिजिकल आया करती थी और बच्चों का इंटरव्यू लेती थी, और कई बार ऐसा होता था 2-2, 3-3 दिन तक या लेट नाइट भी कई बार इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आया है तो ऑनलाइन सिस्टम में कंपनीज़ ने वर्चुअल इंटरव्यूज़ लेना शुरू कर दिए हैं। और ये चीज़ CGC ने कोविड से करीब 2-3 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइक स्काइप हो गया या गूगल मीट हो गया, उसके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी बच्चों को काम करवाना शुरू कर दिया था। अब जबकि कोविड आया तो उसके बाद थोड़े और वो प्रोएक्टिव हो गए, और इस तरीके का स्पेशल सेशन भी हम लोग बच्चों के लिए कंडक्ट कराते हैं जहाँ पे उनको बताया जाता है कि भाई जूम पर आपको कैसे काम करना है, या गूगल मीट पे, या जो भी एक आपका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, बैकग्राउंड लाइटिंग कैसे होती है, ठीक है, आपको कैसे बैठना है, कैमरे का कैसे इस्तेमाल करना है। तो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर वर्किंग विद अस राइट नाउ, हु आर गिविंग लाइव एक्सपोजर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा जो है फ्यूचर के लिए पूरा रेडी है और उसको पता है कि कैसे काम करना है। ट्रू सर, वेरी ट्रू। और मुझे लगता है पोस्ट पैंडमिक तो वी हैव सीन अ टोटल शिफ्ट इन द एंटायर कल्चर। इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। Yes, a total shift, and I think CGC Jhanjeri उस चीज़ से काफ़ी अच्छे से डील कर रहा है, and we are having good results. So any of the story that we can have from alumni success
जो आपने जो you have put in all your effort and that has turned out into a fruitful result? Any example of that? हमारे एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है. अगर मैं अपने एलुमनाई की बात करूं तो हमारा 10,000 प्लस एलुमनाई बेस है, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है इट्स लाइक मोर देन 12 ईयर्स ओल्ड. और बहुत सारे स्टोरीज़ हैं हमारी यहाँ पे एलुमनाई सक्सेस का, कि एक बच्चा है जो कि 10th एंड 12th में बहुत अच्छे नंबर नहीं थे उसके, लेकिन उसके बाद भी ही गॉट 3 offers from our college. He is an MCA student who has cleared his MCA exam in 2022. और उसके बाद आज एक कंपनी में वो काम कर रहा है जहाँ पर उसका जो पैकेज है 8 LPA का है. एक और हमारी MBA की स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2022 में ही MBA कंप्लीट किया था. उन्होंने इनिशियल लेवल पर HR ज्वाइन किया. उसके बाद she became a co-founder of the company and now she is owning another company and working as a founder of that particular company. एक और एग्जांपल है हमारा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है CSC का बच्चा, जिसने 2016 में अपना BTech कंप्लीट किया, और BTech कंप्लीट करने के बाद आज ही इज़ द फाउंडर एंड ही ऑफ अ कंपनी ऑफ अ very good organization he is running right now and giving employment to a lot of the company. हमारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ जॉब नहीं, ऑन टॉप बिजनेस में भी जा रहे हैं, और साथ में गवर्नमेंट जॉब्स में भी देखा है, सब इंस्पेक्टर या फिर अच्छे लेवल पे जो बच्चा है वो पहुंच रहा है. सो lot of stories. That's what I told you. You have an example and you have a list of examples. And list of stories. I think वो CGC झंझेरी के लिए अपने आप एक बहुत बड़ी बात है. That when you talk about alumni success, we have more than 10,000. Yes. That's a huge number, right? It is. And sir, it was a very lovely conversation. Anything that you would like to say here, because this is the platform, about anything which is left out to feel कि अच्छा ये चीज़ मुझे इस वक्त बोलनी चाहिए. This holds a lot of importance. Anything that you would like? At the end, I would like to conclude this particular session with the kind of vision our management has. The vision of this management is not only talk about giving education, but again, as I said, the holistic development of a student. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा अगर इस इंस्टीट्यूशन में आ रहा है तो उसको वो विज़न समझना बहुत ज़रूरी है. और मैं ये कहूँगा कि अगर वो आ रहा है तो वो सिर्फ जॉब के लिए इस इंस्टीट्यूशन में ना आए, वो एक ओवरऑल करियर के लिए लेके आए. और जब वो यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद जिस भी तरीके का उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो सारी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करे. और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार ये बच्चों को बोलता हूँ कि सिर्फ स्टडीज़ या सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होना चाहिए. दोनों का अच्छा एक कॉम्बिनेशन हमें बना के रखना है, ताकि जो बच्चा है उसका एक ओवरऑल ग्रोथ हो. और इसी तरीके के जो बच्चे हैं वो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है. इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन ये है कि वो नॉलेज के साथ साथ फिजिकली भी और मेंटली भी फिट रहे. और टुवर्ड्स द एंड मैं ये बोलूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों के लिए वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि गुड हेल्थ लीड्स टू गुड मेंटल हेल्थ also. Mental health is a very big topic in itself, and surely we'll have a podcast on that also. But you said it very rightly that there is need of balance in both the things. It is a blend of so that's very good tip. Even I am going to follow that. And all right, sir, this was a very lovely conversation with you. And well, this is a wrap for today's podcast, today's vlog, CGC Unfiltered. So this is Sunidhi signing off, and this was Deputy Director, CCPD Department. Thank you. Thank you.